Thank you. Thanks a lot. And I'm very happy. Thank you to TutorBee, first of all, for having me on board again. So, my name is, as you know, Ume Farba, and I'm a clinical dietitian. So, right now, I am a consultant dietitian at Diet Google, my own page. And beside this, I am doing my MPhil, food and nutrition from US, and I'm a researcher there too. So this was the introduction, and the topic we are having today is iron deficiency anemia. Right? If I talk about anyone who can say who has been diagnosed with iron deficiency anemia, can raise the hand or just unmute yourself and tell us. Yeah, once when I was in my teenage, I have been diagnosed with iron deficiency, but doctor has given me some supplements, some iron, some milks which are rich in iron and vitamin B12, I think. And then later on, I don't know, I was really busy with my studies. I didn't actually focused it a lot. But later on in life, it just recovered, and now my tests are perfectly okay. I don't find any issue with me afterwards. Okay. So, at which age you were diagnosed, if you can tell me, or in which year, teenage or adulthood? I was 15 years. I was 15 years old when I was diagnosed as iron deficient, and I was having pale skin. I was having the things like pale skin, and I was also having some issues with my cycle, with my hormonal cycles. And yeah, these were the classical examples that first, like classical symptoms, I should say, that doctor has observed in me. So thank you, Asra, for sharing your story with us. Okay, this is something, iron deficiency is very common from childhood to adulthood. So there are a lot of people who are being diagnosed, and there are so many cases that get undiagnosed. People really don't focus on it. So it's very important कि आप इसको consider करें, specifically जब आप अपने teenage में हैं, या specifically for girls, right? It's very common in girls. Boys में बहुत ज़्यादा है, लेकिन girls में बहुत ज़्यादा common है due to some hormonal issues and changes, specifically after जो puberty हमारे पास आज भी हो रही होती हैं. So my slides are visible or not? Anyone can confirm. Is it visible? Yes. So okay. So I'll be moving towards second. Okay. When it comes to iron deficiency anemia, तो सबसे पहले कोशिश इस चीज को समझने की जरूरत है कि anemia is a journal term. उसके नीचे you can say iron deficiency anemia होता है. और एनीमिया की बहुत सी टाइप्स है. एनीमिया बेसिकली अगर सादे अल्फाज में मैं बताऊं तो होता क्या है, वो ये होता है कि यू कैन से दैट इट इज लैग, योर ब्लड इज नॉट टू द ऑप्टिमम. और इसका सबसे पहले जो लोग टेस्ट करवाते हैं, दैट इज वेरी कॉमन, वो सीबीसी के अंदर होता है, जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है आपका, वो आप लोग करवाते हैं. और इसमें एचबी का फैक्टर होता है जो आपको बताता है कि भाई आपका ब्लड कम है, ज्यादा है, ऑप्टिमम है. उसके साथ साथ इफ आई टॉक अबाउट देन इट्स बीन रिटन हियर दैट जो है ना हीमोग्लोबिन, आयरन, व्हाट्स द रोल ऑफ आयरन. आयरन का रोल ये होता है कि वो हीमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, राइट? इट्स राइट देयर. यू कैन से our body is made up of cells. Hemoglobin is made up of iron with so many others. So iron is very essential. अब एनीमिया की कॉजेज क्या होती हैं? There are so many causes. अब उसमें सबसे पहले आता है कि कैंसर की वजह से एनीमिया होता है. सेकंड जो सबसे प्रेवलेंट यू कैन से इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. द सेकंड मोस्ट इज पर्नीशियस एनीमिया, इट इज नॉन एज, जो स्टमक के डिसऑर्डर की वजह से होता है. इट्स वेरी कॉमन. वो B12 की डेफिशिएंसी या उसका एक फैक्टर होता है, वो आपकी बॉडी में नहीं मौजूद होता, उसकी वजह से होता है. एंड देयर आर सो मेनी जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ एनीमिया अलोंग विद दिस इम्पेयर्ड यू कैन से स्प्लीन फंक्शन जो आपका होता है. स्प्लीन इज समथिंग जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनको रिमूव कर रहा होता है, नए वालों को बना रहा होता है. उसके बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम योर गट, जो आपका स्टमक होता है, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल, जस्ट लाइक जो अस्रा सेड कि ड्यू टू हार्मोनल. जी
सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना था कि आप अपना ये फुल स्क्रीन कर दीजिए, बिलाल गाइड आपको। मैं ओके वेट लेट मी, आई ट्राइड बट स्क्रीन के ऊपर नहीं हो रहा। यस बिलाल, यू कैन गाइड मी। सो आई विल कंटिन्यू, देयर मेनी अदर टाइप्स। और उसके साथ साथ हमारे पास जो है ना, यू कैन से कि उसके अंदर उन सारी कैटेगरीज के अंदर जो फॉल करती है ना, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है, एंड इट्स वेरी कॉमन इन अडल्ट्स। अगर मैं बताऊं कि 2018 के नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे जो पाकिस्तान में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मोर देन 40% जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वो इसके अंदर यू कैन से इन्वॉल्व है, और इसमें मोस्टली टीनेजर और अडल्टहुड है, और स्पेसिफिकली गर्ल्स है हमारे पास। So this is very common. So it's very important कि हम लोग इसको consider करें when it comes to iron deficiency anemia. And there are certain you can say symptoms होते हैं हमारे पास जो okay, there are many causes, and if I talk about prevention, how to prevent basically the anemia if you are the one who has been diagnosed, right? So I'll share here. There are certain things जिसमें आप अपनी diet के through. The first thing is कि सबसे पहले ना अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पे जाया करें, उसके बाद गो टू द आर्टिफिशियल थिंग्स, मतलब सप्लीमेंटेशन। जितना आप प्रो टिप ऑफ हेल्दी लिविंग इज, जितना आप नेचर से करीब रहेंगे ना, आपको उतनी कम से कम डिजीजेस होंगी, और आपका मूड और आपका यू कैन से जो इमोशनल स्टेट है ना, वो बहुत अच्छी रहेगी। सो कोशिश करें पहले नेचुरल चीजों से यू कैन से ट्रीट करें किसी भी चीज को, उसके बाद इफ इट्स नॉट यू कैन से क्यूरिंग, देन मूव टूवर्ड्स समथिंग आर्टिफिशियल, अनलेस एंड अनटिल यू आर इन द कंडीशन और सिचुएशन जिसमें आपको बहुत अब्रप्ट रिजल्ट चाहिए, राइट? सो बिलाल, मूव टू द स्लाइड एनीमिया प्रिवेंशन। यस ओके, सो सबसे पहले आपका ये होता है कि आपने देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमिया एज आई टोल्ड, तो हर किस्म के जो टाइप होता है उसको करने के लिए सबसे पहले होता है कि आपको न्यूट्रिएंट रिच विटामिन रिच डाइट लेनी, जिसमें मोस्ट कॉमन जो होता है ना, B12 आ जाता है हमारे पास, और विटामिन सी आ जाता है। मिनरल्स की बात करूं तो फोलेट और आयरन आ जाता है, और फोलेट आ जाता है। अलॉन्ग विद दिस मल्टीविटामिन देयर आर सर्टेन अदर्स, और जेनेटिक काउंसलिंग आपकी जरूरत होती है इफ यू आर हैविंग जेनेटिक एनीमिया। So now move towards iron deficiency, because here we will be talking about iron deficiency. Move to the next slide, Bilal. Okay, now it is the iron deficiency anemia, जिसमें हम लोग if I talk about there are certain things, right? इसमें you can say सबसे important चीज है कि आप देखें आपकी डाइट कहीं आयरन डेफिशिएंट तो नहीं, आप कोई चीज ले रहे हैं। You can say if I categorize as a dietitian, तो 3 मोस्ट बेसिक रीजंस होती है। फर्स्ट रीजन, आपकी डाइट आयरन रिच है ही नहीं। सेकेंड रीजन, आप आयरन रिच डाइट ले रहे हैं बट उसके साथ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स ले रहे हैं जो उस आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं होने दे रहा। दिस इज कॉल्ड एज मैल न्यूट्रिशन, या जो एब्जॉर्प्शन आपके ऑप्टिमम नहीं होती। एंड थर्ड थिंग इज कि यू आर टेकिंग आयरन रिच डाइट, आप ऐसे फैक्टर्स भी नहीं ले रहे, बट देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ इंटरनल इश्यू, स्टमक इश्यू स्पेसिफिकली, जो आपके आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा। So you need to consider these 3 जब भी आप इसको you can say treat करने की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप आयरन ले नहीं रहे, सेकंड मैल न्यूट्रिशन है, आपका एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा ड्यू टू सर्टेन। अब यहाँ पे ना एक डाइट के नीचे द थर्ड पॉइंट इज पॉलीफिनोल्स एंड टैनिन्स। दैट इज कि आप डाइट तो ले रहे हैं लेकिन कंपोनेंट कुछ ऐसे साथ ले रहे हैं जो उसके साथ यू कैन से उसको एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे। तो उसमें सबसे पहले पॉलीफिनोल्स आते हैं और टैनिन्स आते हैं। ये बेसिकली हमारे पास टी के अंदर होता है। जो टैनिन है ना, वो हमारे पास जो हम नॉर्मली चाय होती है ना, चाय की पत्ती के अंदर पाया जाता है। सो उसका ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान की वॉर है, ठीक है, उन्होंने कभी इकट्ठे एक जगह पे एक पेज पे बैठना ही नहीं है। सो दिस इज द सिमिलर विद टैनिन्स और आयरन। टैनिन्स कभी भी आपको आयरन अब्सॉर्ब नहीं होने देता, तो इसलिए इफ यू आर ईटिंग एनी आयरन रिच डाइट तो कोशिश करें कोई ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर ये पॉलीफिनोल मोस्टली ग्रीन टी के अंदर पाए जाते हैं, और टैनिन्स जो होते हैं जो नॉर्मल हमारी टी और यू कैन से कॉफी होता है, कॉफी के अंदर भी पॉलीफिनोल्स होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटे का गैप आपके मील के अंदर होना चाहिए। आपको चाय पीनी है आप पिए, लेकिन 1 से 2 घंटे के गैप के बाद। फॉरन मील के बाद कंज्यूम करने वाले जो हमारा कल्चर है ना, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। दिस प्रैक्टिस हैज बीन डन बाय मी, मैंने भी की है, बहुत ज्यादा की, अभी तक करती हूँ, लेकिन यू नीड टू कंसीडर दैट इफ यू आर आयरन डिफिशिएंट तो इसको कंसीडर करना चाहिए। एंड सेकंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विटामिन सी। विटामिन सी और आयरन दो ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आप आयरन, आपने कोई फॉर एग्जांपल आयरन रिच सोर्स से लिया है
along with vitamin C, तो वो फॉरन एब्जॉर्ब हो जाता है. दिस इज द बेस्ट कॉम्बो यू कैन हैव इन योर डाइट. विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है हमारे पास, जितनी भी बेरीज होती है उसके अंदर होता है. आंवला इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. अलॉन्ग विद दिस इज ब्रोकली. वेजिटेबल्स के अंदर ब्रोकली बहुत अच्छा सोर्स है आपके पास विटामिन सी. और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं ब्लैक पेपर, आप खा रहे हैं, आपने गोश्त के अंदर थोड़ा सा काली मिर्च डाली और आपने कंज्यूम किया. सो द सेकंड थिंग इज अब्जॉर्प्शन. अगेन एज आई टोल्ड यू कि आप खा रहे हैं, आपकी आयरन रिच डाइट भी है, लेकिन आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करी, तो उसमें कुछ हमारे पास डिजीजेस आ जाती हैं. जैसे गैस्ट्राइटिस एक इश्यू होता है हमारे स्टमक के अंदर, और उसके बाद सीलिएक डिजीज होती है, एक स्पेसिफिक डिजीज होती है जिसमें ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता. अगेन सर्जरी होती है, आपने स्टमक का कोई पार्ट रिमूव कर दिया है. उसके बाद कुछ ड्रग्स होते हैं जो आप ले रहे होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं. अलॉन्ग विद द मोस्ट कॉमन इन जो हमारे पास डिजीज है आजकल स्टमक की बहुत ज्यादा है, वो है अल्सर. एच पाइलोरी जो जहां पे लगा हुआ है, दिस इज द बैक्टीरिया जो अल्सर कॉज करता है. और वो अल्सर यू कैन से आपका स्टमक में होता है जो एच पाइलोरी. ड्यूडेनल मींस इंटेस्टाइन का अल्सर भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर आपको अल्सर है तो आपकी जो आयरन एब्जॉर्प्शन स्टमक के अंदर होनी है वो नहीं हो रही होती है एज सच. उसके बाद ब्लीडिंग, अगेन हुकवॉर्म इज अनदर यू कैन से इन्फेस्टेशन जो होती है when it comes to iron deficiency. अगर इनमें से कोई एक सिम्टम या कोई एक कंडीशन आपके अंदर है तो you need to consider more about your iron. और इस तरह के पेशेंट्स को ना हम लोग फिर डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं ताकि उनकी जो आयरन की यू कैन से एब्जॉर्प्शन है ना वो इंक्रीज हो जाए. बिकॉज जो डाइट्स आप लेते हैं ना वो डायरेक्ट आपके यू कैन से इन्फ्यूज इफ यू टुक थ्रो ओरल तो वो थोड़ा सा डाइजेशन हो जाता है. उसमें से फॉर एग्जांपल अगर 25% लॉस हो गया तो 75% एब्जॉर्ब होगा ही होगा आपके ब्लड के अंदर. सो सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नीड किन किन लोगों में बहुत ज्यादा होता है. सबसे पहले हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज चिल्ड्रन. आजकल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यू हैव सीन इन सो मेनी एडवर्टीजमेंट्स जिसमें एक मेंशन होता है कि हर 2 में से एक बच्चा आयरन डेफिशिएंट है और उसके लिए एक वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट दे रहे होते हैं. उसके एडवर्टीजमेंट कहते हैं इफ यू कंज्यूम दिस तो आपकी आयरन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी. सो ट्राई टू यू कैन से ऑब्जर्व whenever you are consuming any package based product तो उसका जो न्यूट्रिशन लेबल होता है उसको पढ़ा करें कि उसके अंदर वो चीज जो उन्होंने बताई हुई है वो है भी या नहीं. तो दिस इज द थिंग आई थिंक सो आवर कम्युनिटी नीड्स टू कंसीडर व्हेन इट कम्स टू आयरन डेफिशिएंसी कि आप न्यूट्रिशन लेबल पढ़ें कि जो उन्होंने कहा है, जो स्टेट किया है, इट इज बीइंग मेंशन्ड ऑन द लेबल और नॉट. एंड द थर्ड थिंग इज ऑब्वियसली प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर बहुत ज्यादा होता है. आयरन एंड फॉलिक एसिड इज समथिंग दैट इज वेरी डेफिशिएंट और हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले ही उनको कह देते हैं कि इसको कंज्यूम करें. एंड द थर्ड थिंग इज यू कैन से कीमोथेरेपी. इफ यू आर द पर्सन हैविंग कीमोथेरेपी या कैंसर का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आयरन को कंसीडर करें. एंड द थर्ड थिंग इज एथलीट्स. वो एथलीट जो बहुत एक्सर्शन वाली एक्सरसाइजेस करते हैं, स्पेसिफिकली जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, so they need to consider the iron intake. Okay, so the others are you can say आपका metabolic disorder है. Again this is something very internal and hemolysis है कि आपकी जो blood की breakdown है ना वो बहुत ज्यादा हो रही है. This is linked to spleen infection or you can say any kind of other reason. So inflammation, अगर आपकी इंटेस्टाइन में या आपके स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन है दैट इज लीडिंग यू टूवर्ड्स आयरन डेफिशिएंसी, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर. ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इन्फेक्शन हो जाता है एंड यू आर अनएबल टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स यू आर कंज्यूमिंग ऑन अ डेली बेसिस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करें पहले, उसके बाद फिर आप आयरन डेफिशिएंसी की ट्रीटमेंट की तरफ आए. And blood loss again, for example there are so many people जिनका HB कम होता है लेकिन वो iron deficient नहीं होते. उनका HB इस वजह से कम होता है, there is a lot of blood loss. और उसकी रीजन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपका हीमाटूरिया है या मैनरेज है, ठीक है. उसके बाद जो है कैंसर लेजन्स होते हैं आपके स्टमक के अंदर. अगर कैंसर है तो जिसकी वजह से आपकी जो वॉल्स होती है ना स्टमक की, उसके अंदर से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है. So it's very important to consider these conditions first and then treat iron deficiency. So the next one is okay, मुझे पहले ये बता दें I'm at very low pace और मैं बहुत fast pace पे हूँ because some people do complain a lot कि मैं बहुत ज़्यादा तेज बोल रही हूँ, so इस वजह से. Okay, I'll try. Okay.
So I'll try to manage. Okay. So the next one is symptoms. If you are having deficiency and you know, then what are the symptoms? सबसे पहला symptom जो है ना आपका paleness of skin है. This is the very at the top most. ठीक है, हम कभी भी कोई हमारे पास पेशेंट आता है ना तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका स्किन कलर है. अगर आपका स्किन कलर पेल है एंड द थिंग इज कि आपका आई का जो लिड होता है यू कैन स्विच इट और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मिरर के अंदर इफ इट्स पिंकिश और इफ इट्स पेल. इफ इट्स पेल तो देयर आर मोस्ट चांसेस कि आप आयरन डेफिशिएंट हैं. एंड द सेकंड थिंग इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. सीढ़ियां चढ़े 5-6 दफा ऊपर नीचे आपकी सांस, बल्कि पहली दफा जो आयरन डिफिशिएंट होते हैं उनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है. इफ यू हैव अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो इसका एक बहुत यू कैन से इंडिकेशन होती है कि यू आर आयरन डेफिशिएंट. सेकंड थिंग इज हेडेक. हेडेक बहुत कॉन्टिन्यूअस होता है. आई लेट मी बी स्लो. हेडेक बहुत कॉन्टिन्यूअस होता है बिकॉज इट्स नॉट लाइक माइग्रेन बट इट्स इन बिटवीन द माइग्रेन एंड नॉर्मल काइंड ऑफ हेडेक. उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यू कैन से आपकी बिकॉज यू आर डेफिशिएंट और आपका ब्लड नहीं बन रहा सो यू हैव अ काइंड ऑफ जो जिसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है मेरी टांगों में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द है. आप कह रहे हैं हाँ भाई तुम सारा दिन खेलते रहे हो, खेल के कूद के इसकी वजह से टांगों में दर्द है. ट्राई टू ऑब्जर्व द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ योर किड. जब वो आपको कंप्लेन करे उसको कभी भी ऐसे यू कैन से जाने ना दें, उसको कंसीडर करें उसको. बिकॉज बाज दफा ना बच्चे को नहीं पता उसकी क्या डेफिशिएंसी है बट यू नीड टू कंसीडर कि अच्छा ठीक है टांगों में कॉन्टिन्यूस दर्द रह रहा है तो हो सकता है कोई मिनरल या विटामिन की डेफिशिएंसी हो. इसका आयरन डेफिशिएंसी से भी ताल्लुक है, इसका कैल्शियम डेफिशिएंसी से भी है और इसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से भी है. अगर आप तीनों ये चीजें हैं तो आपकी टांगों में आप क्रैम्प्स पड़े रहते हैं बहुत ज्यादा. थोड़ा सा अगर आप वॉक या फिजिकल एक्सर्शन करते हैं और आपको ऐसे लगता है जैसे आप सारा दिन क्या किया आपने, तो दिस इज द कंडीशन यू नीड टू कंसीडर. एंड द थिंग पुअर फोकस. पुअर फोकस ये होता है कि यू आर इन द स्टेट ऑफ डिजीनेस. यू डोंट फील लाइक डूइंग थिंग्स. मतलब आप कहते हैं हर वक्त लिथार्जिक या फटीग की स्टेट में है. तो इसका एक ये भी है. आयरन अलॉन्ग विद दिस विटामिन डी डेफिशिएंसी के अंदर एक कॉमन सिम्टम ये होता है फटीग का. So if I talk about heart palpitation. Heart palpitation क्या होती है? आप सीढ़ियां ऊपर नीचे गए हैं और एकदम से आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो रही है, हालांकि नहीं होनी चाहिए थी, नॉर्मली नहीं होती इफ यू आर आयरन सफिशिएंट या आपके ऑप्टिमम लेवल ऑफ आयरन आपकी बॉडी में. ओके सो जैसे कि आसिया ने कह दिया अभी कि आप जो है ना बताएं सिम्टम्स कौन से हैं. सो आई वाज अबाउट टू आस्क दिस कि ये एक्टिविटी करनी है सो दैट्स व्हाई आई आस्क सारे खड़े हो जाएं. अच्छा टू थिंग्स. सबसे पहले आपका आंख का जो नीचे वाली आईलिड होती है ना यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन एंड यू हैव टू सी वो अंदर से जो अंदर वाला है आईलिड का जो अंदर वाला है कॉर्निया का नहीं आईलिड का जो अंदर वाला है उसमें देखें वो पिंक है कि नहीं. बिकॉज नॉर्मली अगर आप किसी बच्चे की भी देखेंगी ना तो वो पिंक होगी जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, मतलब उसके साथ ज्यादा बहुत जेंटली देखें तो इट्स पिंक. और यू कैन गूगल इट ऑन गूगल. आप गूगल कर सकते हैं सो यू विल सी. अगर नहीं है या हल्का सा पेल है तो इट मीन्स यू आर आयरन डेफिशिएंट. एंड द सेकंड एक्टिविटी इज कि अपना नेल देखें. सब एवरीवन सी द नेल. तो जहां से नेल ओरिजिनेट होता है वो नेल बड उसको हम कहते हैं. अगर वहां से जो आपका नेल हो रहा है वहां पे येलोइश ह्यू है, येलोइश या व्हाइटिश ह्यू है आपका, इट मीन्स यू आर आयरन डेफिशिएंट. और इसकी एक और बड़ी कॉमन से यू कैन से सिम्टम होता है कि आप इफ यू आर आयरन डेफिशिएंट ना तो आपके नेल्स के ऊपर ना लाइंस आना शुरू हो जाती हैं. स्ट्रेट लाइंस होती हैं जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है लेकिन आयरन एक वन ऑफ द रीजन उसकी वजह से. अगर आपके देखिए आप आराम से और ब्रिटल है आपके बहुत आसानी से नेल टूट जाता है आपका, इट मीन्स यू आर आयरन डेफिशिएंट. ब्रिटलनेस ऑफ द नेल इज वन ऑफ द सिम्टम्स यू आयरन डेफिशिएंसी. लेकिन थोड़ा सा सिवियर जब जाता है ना तब होता है आपका. एंड यू कैन से कि द मोस्ट कॉमन थिंग इज यू हैव टू प्रेस योर नेल. इफ यू कैन सी इसको प्रेस करें थंब को, बल्कि आई विल रिकमेंड थंब को जैसे इस तरह से ऐसे आपने प्रेस किया दूसरे थंब के साथ और आपने छोड़ दिया. अगर फॉरन पिंक होता है तो इसका मतलब है कि आप आयरन डेफिशिएंसी नहीं है. अगर फॉर एग्जांपल 3 to 5 seconds उसको लग रहे हैं पिंक होने में तो इट मीन्स यू आर आयरन डेफिशिएंट. सो एवरीवन डू एंड कमेंट इन यू कैन से चैट इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर और नॉट आयरन डेफिशिएंट. सो दीज आर द थिंग्स जो आप खुद देख सकते हैं अपने अंदर. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट that you are not.
सो रिसेंटली आई वॉज आयरन डेफिशिएंट, और वो ऐसे ही था कि मेरे नेल्स जो थे ना वो पेल होना शुरू हो गए थे, क्योंकि नेल के जो नीचे वाली स्किन होती है ना वो बहुत जल्दी इफेक्ट होती है। आपकी जो एक्सट्रीमिटीज होती है ना, मतलब एक्सट्रीमिटीज होती है, हमारे हाथ होते हैं, हमारे पाँव होते हैं। कोई भी डिजीज है ना तो आपको फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर आपके अंदर है ना तो आपके आप बाल ऐसे उठाएंगे और बाल टूट जाएगा। सो दिस इज अ साइन कि आप प्रोटीन डेफिशिएंट है। ये कॉमन साइंस होते हैं जो हमने अपनी यू कैन से इन दिस बैचलर्स वी हैव लर्न कि अगर पेशेंट के पास टेस्ट रिपोर्ट नहीं है ना तो हम उससे डायग्नोज करते हैं, अच्छा इसको ये कंडीशन हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मे बी दैट पेशेंट इज डेफिशिएंट। So these are a kind of we name as physical assessment, जिसको हम लोग कह रहे होते हैं। So I hope आसिया आपको जवाब मिल गया होगा how you can easily do that, and rest of the people who have done. Okay, मोहम्मद मसूद said that I am not okay, thumb check, right। और एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी that I have learned from my own experiences, if you consume or love to consume everyday की बनी हुई चाय, मीन्स जो पाउडर एवरीडे होता है, यू आर डेफिनेटली आयरन डेफिशिएंट। और उसका जो 3-in-1 पैक आ रहा है ना आजकल नहीं है, बहुत 2019 में उनका स्टार्ट हुआ था। आई जस्ट कंज्यूम इट फॉर 15 days और 16 days मे बी इन हॉस्टल एंड आई वॉज आयरन डेफिशिएंट। और मेरे बहुत वाज़ा सिम्टम्स थे, मतलब मैं यू कैन से आई वॉजंट एबल टू क्लाइंब 5 stairs, इतना ज्यादा सांस फूल जाता था मेरा। तो डोंट कंज्यूम दैट 3-in-1 वाला जो पैकेज है एवरीडे का, बिकॉज इट्स अ टी वाइटनर, इट्स नॉट मिल्क। तो और कोशिश करें व्हेन यू आर कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स उस पर देख लें, लिखा हुआ होता है, बिकॉज इट हैज बीन यू कैन से मेंशन्ड एंड रिकमेंडेड बाय पंजाब फूड अथॉरिटी कि अगर आपका टी वाइटनर है तो उसके आप मेंशन करेंगे। वो बहुत छोटा सा करके लिखा हुआ होता है साइड पे, यू कैन से इफ दिस इज द आई जस्ट हैव दिस, ये अगर आपका फ्रंट पैकेज है तो जो साइड की थोड़ी सी जगह होती है ना उस पर नीचे करके लिखा होता है इट्स नॉट मिल्क, इट्स अ टी वाइटनर। तो कोशिश करें व्हेन यू आर बाइंग एनीथिंग तो ट्राई टू जस्ट रीड द लेबल। So I have been covered these iron deficiency या जो रिस्क फैक्टर किन किन लोगों में होता है, स्पेसिफिकली औरतों में होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर होते हैं और टीनेजर्स में होते हैं। नाउ सो मूविंग टुवर्ड्स हाउ टू यू कैन से क्योर इट। अब दो चीजें होती है हमारे पास व्हेन इट कम्स टू खाना। एक सबसे रिचेस्ट सोर्स है आपके पास गोश्त, द रेड मीट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड मीट। अब रेड मीट होते हैं एल्डरली लोग जो थोड़े से मीन्स 40+ 50+ होते हैं या उनके जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, उनको रेड मीट हम रिकमेंड नहीं करते। तो व्हाट दे कैन डू इज दे स्विच टूवर्ड्स अदर नॉन हीम सोर्सेज, जो वेजिटेबल सोर्सेज से आता है, जो मीट से नहीं आता, या फिश की तरफ आप चले जाएं, आप सी फूड की तरफ चले जाएं, बिकॉज उसमें भी आयरन होता है। एंड चिकन हैज ऑल्सो ये पोल्ट्री सोर्स हमारा। अब इसमें ना दो चीजें हैं, हीम एंड नॉन हीम। हीम ऐसा है जो बना ही आपके लिए है, मीन्स वो आपकी बॉडी में जाएगा, फौरन से डाइजेस्ट हो जाएगा, उसको कोई कैरियर किसी चीज की जरूरत नहीं है। बट द नॉन हीम इज द पार्ट ऑफ द यू कैन से जिसको कैरियर की जरूरत है, उसका वो कैरियर है विटामिन सी। जब भी आप सब्जी से दालों से ये चीजें यहाँ पे मेंशन है जैसे, तो उनसे आप ले रहे हैं ना आयरन के रिच सोर्सेज, तो ट्राई टू कंज्यूम इट विद विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे आसान लेमन, और सेकंड हमारे पास है ब्लैक पेपर इफ यू कैन, एंड द थर्ड इज ब्रोकली। अगर आप ले सकते हैं तो इन तीनों के साथ लें, बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल। फर्स्ट टू आर इजीली अवेलेबल। सो मीट सोर्स एज आई टोल्ड इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। अगर आप डेफिशिएंसी, और इसके साथ फॉर एग्जांपल ऑन अ डेली बेसिस अगर आप हाथ के पाम जितना आपका हाथ है, हथेली के पाम जितना एक गोश्त का टुकड़ा खा रहे होते हैं ना, इन एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब दिन में 2 दफा खा रहे हैं इतना साइज का, तो आपकी आयरन डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है, बिकॉज वो आपको मिल रहा होता है। लेकिन शर्त ये है उसके साथ चाय नहीं पीनी, कॉफी नहीं पीनी, ग्रीन टी नहीं पीनी, ये 3 चीजें नहीं करनी। विटामिन सी उसके साथ आप ले सकते हैं। और द सेकंड थिंग इज इफ आई मूव टुवर्ड्स इट, दीज आर द सोर्सेज। इसमें एक चीज है, ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास आते हैं ड्राइड प्रून्स जो होती हैं, जिसको हम लोग ड्राइड प्लम बुखारा भी कहते हैं। और आलू बुखारे की चटनी बहुत इजीली अवेलेबल होती है, घर पे बनाएं तो बेस्ट है। आई विल नॉट रिकमेंड बाहर से लेना। सो उसको या तो ड्राई फॉर्म में जैसे वो मिल रही होती है ना उसको कंज्यूम करें, या उसको रात को भिगो के रख दें और सुबह उठ के उसका पानी पी लिए। दैट्स अ रिच सोर्स ऑफ आयरन इट एज अ ड्राई फ्रूट। तो वो आप इजीली कंज्यूम कर दें, बिकॉज इट इज रीजनेबल टू कंज्यूम इट इफ यू आर अनेबल टू गो फॉर दीज काइंड ऑफ फ्रूट्स। उसके साथ ओट्स में हमारे पास आता है स्पिनिच। स्पिनिच इज द सोर्स। यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, व्हाई एनीवन हु नोज द आंसर ऑफ दिस, कि हम लोग सब्जियों को या दालों को पकाने से पहले भिगोते क्यों हैं?
anyone who has read this or knows कि भाई क्यों भिगोते हैं? कभी नहीं, किसी को भी नहीं पता। दालों को तो मुझे लगता है इसलिए किया जाता है कि वो एब्जॉर्ब कर ले वाटर और सॉफ्ट हो जाए। Yes. Okay. To remove वॉश yes. Yes, वो था। Okay, the thing is हम लोग सब्जियों को हल्का सा बॉईल या हल्का सा यू कैन से सोक करने के बाद यूज इसलिए करते हैं क्योंकि सब्जियों के अंदर और ग्रेन्स के अंदर जो होता है ना, हमारे पास होता है फाइटेट, एक यू कैन से नाम होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स, एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सब्जियों में और ग्रेन्स के अंदर, जो आपकी मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। इसी वजह से हम लोग सब्जियों और दालें मोस्टली भिगो के रखते हैं। जैसे मिस आसिया ने बताया कि हम लोग इनको इस वजह से भी भिगोते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं। यस, दे सोक वाटर एंड उसके अंदर से जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उस पानी में लीच आउट कर देते हैं। Have you ever used the same water in your handi or in whatever you are cooking? No. Why we waste them? Because you can throw it in your plants. Plants के लिए वो चीज अच्छी है, लेकिन you can't use it in your daily की जो हांडी बनाए, इसलिए करते हैं because उसके एंटी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर लीच आउट होते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खाने से आपके अंदर आ जाते हैं। I think because you want to clean them thoroughly and make it. Yes, Asra and मोहम्मद मसूद, आप लोगों का बिल्कुल वैलिड है, इसका है साथ साथ क्लीन करने के साथ साथ दिस इज द रीजन। सो जब भी आप सब्जियों से ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो पालक को हमेशा अगर रॉ फॉर्म में भी लेना ना तो हल्का सा सिर्फ 5 मिनट के लिए सोक करके उसके बाद हल्का सा बॉईल करके यूज कर लें। रॉ फॉर्म में करना नो डाउट इट्स नॉट समथिंग दैट्स नॉट रिकमेंडेड, यू कैन यूज इट। और सेकेंड थिंग इज आलमंड। आलमंड जो है वो हमारे पास होते हैं और आलमंड को भी सोक करके, अगेन नट्स को भी, पहले होता था नट्स ऐसे ही ले लें, अब होते हैं नट्स, क्योंकि जो उसको छिलके के अंदर, आलमंड के छिलके के अंदर ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसको अब्सॉर्ब नहीं होने देते, तो छिलका उतार के खाएं इसका। उसके बाद एज आई टोल्ड, ड्राई फ्रूट एंड ड्राई रेजिन्स जो होते हैं, रेजिन जो किशमिश होती है, हम लोग ड्राई ब्लैक कलर की जो होती है, एक ग्रीन में आती है एक ब्लैक में। ब्लैक इज वेरी यू कैन से हेल्दी सोर्स, वो बहुत से और मिनरल्स और विटामिन का सोर्स है। एंड एग्स, अगेन एग योक हैज आयरन एंड विटामिन D2। एग इज समथिंग वेरी एसेंशियल। आजकल कंजक्टिवाइटिस बहुत फैला हुआ है, आंख की जो इन्फेक्शन है, तो कोशिश करें एग का इस्तेमाल लाजमी करें। एंड द थर्ड थिंग इज आयरन रिच फूड अलोंग विद विटामिन C, आई हैव मेंशन्ड हियर। सो इसको विटामिन C रिच फूड के साथ खाएं, जैसे कि हमारे पास यू कैन से कीवी है, हमारे पास जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, ब्रोकली है, उसके बाद शकरकंदी। इन यू कैन से when I started making videos for my own channel, so मैंने ना सर्च किया इसका शकरकंदी, बिकॉज हमने कभी कंसीडर ही नहीं किया ना। हम कहते हैं कि इतनी कोई हाई फाई कोई ऐसी इंग्रेडिएंट या कोई फूड होना चाहिए जो हम लोग अपनी डेली डाइट के अंदर इंक्लूड करें, तो जो नॉर्मली हमारे ठेलों में मिल रही होती है ना सब्जी, हम उसको कंसीडर ही नहीं करते। वही अगर आप थोड़ा सा पैकेज प्रोसेस उसका अच्छा करके बाहर बेचे ना, तो वो हजारों के अंदर से आपको मिलेगी, लोग जाएंगे भी लेने के लिए, लेकिन जस्ट बिकॉज इट्स इजीली अवेलेबल पीपल डोंट कंज्यूम। शकरकंदी इज द बेस्ट सोर्स। आई डू कंज्यूम ऑन अ डेली बेसिस इन माई सैलड, ठीक है, एंड माई ब्रदर डू कंज्यूम, जो मैं इसको भेज रही होती हूँ उसके साथ साथ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो छोटी चीजें आपके पास हैं आप उनको लें। इसके साथ साथ जो लाल लोबिया होता है उसके अंदर भी आयरन का सोर्स है, वो यू कैन कंज्यूम। हमारे पास कीनवा, यू कैन से ओट्स के साथ साथ एक है सीरियल जो आता है, उसके बहुत से फायदे हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, यू कैन कंज्यूम इट ऑन अ डेली बेसिस। देन मीट और यू कैन से सी फूड के अंदर आयरन है ही है हमारे पास। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, सो यू कैन शेयर, अदरवाइज वी आर गुड टू गो एंड आई विल शेयर अ शॉर्ट रेसिपी जिसके अंदर आप यू कैन से दैट यू कैन इंक्लूड ऑन अ डेली बेसिस टू हैव ऑप्टिमम लेवल ऑफ आयरन इनटेक। एंड दिस अगेन विटामिन C के कुछ सोर्सेस मैंने यहाँ पे किए हैं जो हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। टमाटर एक अच्छा सोर्स है हमारे पास, ब्रोकली अगेन हमारे पास अच्छा सोर्स है, बेरीज के अंदर होता है, बनाना हैज अ लिटिल बिट ऑफ इट, नॉट मच, बट बाकी सारी जैसे सिट्रस फ्रूट जितने आप सब में आपके पास विटामिन C मौजूद होता है। सो आई एम अप फॉर द आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन, इफ यू हैव एनी यू कैन। Muzammil has raised hand. Yes, Muzammil, you can unmute your mic and. अस्सलामुअलैकुम, मैं फरवा, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत होंगी। मैं पूरा लेक्चर तो नहीं सुन सका, लेकिन मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन है एक, तो अगर आप क्लियर कर दें। हमें
हम ज़्यादातर मिल्क शेक जो यूज़ करते हैं वो हमें किन फ्रूट्स का यूज़ करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो हम ये जो जूस बनाते हैं, ये जूस अक्सर बनाने का तरीका भी हमारा काफ़ी गलत होता है। जिस तरह से हम वो गाजर का जूस निकालते हैं, इसी तरह से हम दूसरे फ्रूट्स का भी इसी तरीके से निकालते हैं। लेकिन मैंने एक दो जगह देखा, उन्होंने क्या किया, उनको जग में डाल के तो उसको सबको जो है वो ग्राइंड जिस तरह करते हैं इस तरह करके उसके बाद छान लिया, तो उस जूस को इस्तेमाल किया गया। तो हमें ये तरीका भी काइंडली बताइएगा। ओके, सो आपका जो फर्स्ट था जिसमें आपने दूध का पूछा है, मुझे उसका वो क्लियर नहीं हुआ। आप पूछना क्या चाह रही हैं? आप मिल्क के सब्स्टिट्यूट की ऑल्टरनेट पूछना चाह रही हैं, या आप पूछना चाह रही हैं कि ऑन अ डेली बेसिस कितना कंज्यूम करना चाहिए आपको? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमें जो दूध है वो मिल्क शेक जब हम बनाते हैं तो मिल्क शेक में किन फ्रूट्स का बना के पीना चाहिए, और अगर इसका कोई और भी तरीकाकार है तो काइंडली वो भी अगर आप बता दें। ओके, फाइन, इट्स यू आर आस्किंग अबाउट मिल्क शेक्स, ठीक है। अच्छा, मैं एज अ डाइटिशियन आई विल रिकमेंड कि आप फ्रूट एज अ होल खाएं। मतलब कोई भी आपका फ्रूट है ना, वो एज अ होल आप कंज्यूम करें, बिकॉज जब आप उसको कंज्यूम करते हैं ना, उसके अंदर दो चीजें होती है। एक तो उसकी स्टार्च, जो उसके अंदर शुगर होती है, वो तो आपको मिलती ही मिलती है, वो एक हेल्दी सोर्स है। लेकिन उसके अंदर जो फाइबर होता है ना, वो भी मिलता है। जब हम जूस बनाते हैं, बेशक उसको ब्लेंडर के अंदर इकट्ठा ब्लेंड करके बनाएं, या बेशक उसका सिर्फ जूस निकालें और उसका फाइबर या उसका जो स्किन है वो अलग हो जाए, उन दोनों फॉर्म में जो जूस होता है ना, वो उसमें सिर्फ आपको सिर्फ शुगर मिलती है, उसमें आपको फाइबर नहीं मिलता। सो आई विल रिकमेंड दिस। सेकेंड थिंग इज, अगर मैं मिल्क शेक की बात करूं तो आई रिकमेंड कि ना पिए मिल्क शेक। स्पेसिफिकली जो बनाना मिल्क शेक हम बहुत कॉमनली होता है, तो इट्स नॉट रिकमेंड कि आप बनाना को मिल्क के साथ कंज्यूम करें, बट पीपल डू कंज्यूम, सो इट्स समथिंग नॉट दैट हाईली अनरिकमेंडेड, इट्स नॉट लाइक दिस, पीपल डू कंज्यूम, तो आप उनको करें। उसके बाद अगर मैं कहूँ आपको, तो यू कैन से कुछ ऐसी सब्जियां, जो यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी जो मेरे माइंड में था लेकिन मैंने स्लाइड्स में ऐड नहीं किया था, वो था मिल्क along with iron rich sources along with calcium rich sources। अब कैल्शियम में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है दूध, और चीज आ जाती है, और योगर्ट आ जाता है। अब इन सारी चीजों को इसके साथ इस्तेमाल ना करें जो आपने मीट का रिच सोर्स खाया, बिकॉज कैल्शियम और आयरन कभी भी नहीं जाता। यू कैन गो ऑन टू माई पेज, और वहां पे रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ एक वीडियो है, वो देखिएगा। कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन इतने रेगुलर हम यूज कर रहे हैं ना कि वो बेड़ा गर्क कर देते हैं आपकी न्यूट्रिशन का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है बर्गर के अंदर एक पैटी होता है जो मीट का बना हुआ होता है, और चीज होता है। चीज इज अ हाईली रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। फैट तो चलो उसके अंदर है, कैल्शियम तो आपकी एब्जॉर्प्शन होगी नहीं आयरन की। सो इफ यू वांट टू कंज्यूम मिल्क शेक, तो गो फॉर फ्रूट्स। फॉर एग्जांपल सेब का आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ इफ आई टॉक अबाउट देन देयर आर सो मेनी अदर, स्ट्रॉबेरी का बनाते हैं लोग, बहुत कॉमनली बनाते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप दूध को सेपरेट पिए और उसको फ्रूट को सेपरेट लें। और यू आस्क्ड फॉर कौन सा जूस बेहतर होता है, सो उसको यू कैन ऐड द फ्रूट एंड ऐड वाटर, उसमें आपका पूरा फ्रूट ब्लेंड होगा, उसमें कोई भी फाइबर उसका वाई नहीं जाएगा। दिस इज वन कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज, जैसे हम जूसर में बना रहे होते हैं, जैसे गाजर का बहुत कॉमनली बन रहा होता है, या बीटरूट का जूस आई वांट टू मेंशन इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। अब ये एक चीज अल्लाह ताला ने शायद कॉमनली बना दी है लोग, इंसानों के लिए, जिस कलर का फल है ना, उसमें उसी कलर के यू कैन सी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब हमारा खून लाल होता है, तो लाल रंग के जितने भी फ्रूट्स है ना, उसमें मोस्टली में आयरन आपको मिलेगा। सो उसमें अनार आ जाता है आपके पास, बीटरूट बहुत अच्छा सोर्स है टू रिकवर फ्रॉम डेंगू एंड टू रिकवर फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी। Thank you, Masood. I hope it's clear, and I hope the session was a bit informative. I try to convey as much as I can. Baki, if people, okay, Muhammad Zia, you have raised your hand. You can ask the question. Hello. Yeah. How are you, Ummi Farwa? I have a question that I want to know. जैसे आपने बताया कि वेजिटेबल्स को वॉश करने से या उनको ब्लैंच करने से, क्योंकि बहुत सी चीजें हम ब्लैंच करके यूज करते हैं, जैसे टोमेटोज है हो गए, या फिर स्पिनच है, वो भी ब्लैंच करके हम डालते हैं बहुत से वेजिटेबल्स। तो डज इट लूज न्यूट्रिशन? एंड ऑल द सेम क्वेश्चन इज
for the lentils and rice also. So if I talk about blanching, the blanching is basically a technique that is used to lose anti-nutrients, you can say. And second most important thing why blanching is being used since ages is to preserve that food, right? Because उसके अंदर से एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं या कुछ बैक्टीरिया या वट एवर द थिंग इज वो निकल जाती है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व हो जाते हैं. इफ यू कैन यूज फॉर एग्जाम्पल हम ब्लांच करके बहुत सी चीजें ना स्टोर कर देते हैं. रमजान में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, आपने टमाटर लिया उसको हल्का सा ब्लांच किया आपने स्टोर कर लिया. सेम गोज विद इफ यू हैविंग फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो लिया उसको हल्का सा किया एंड ऑल दोस थिंग्स. सो व्हेन यू आर स्टोरिंग इट, तो स्टोरिंग के लिए एक चीज होती है. और सेकंड थिंग इज ब्लांचिंग का जो प्रोसेस है ना वो बहुत मिनिमल सा है, वो इतना ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता कि फौरन से आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर वो यू कैन से वेस्ट हो जाए या चले जाएं. नो, हम जो ओवर कुकिंग करते हैं ना ब्लांचिंग से तो नहीं जाते, इतने थोड़े से जाते हैं. मीन फॉर एग्जांपल अगर एक फ्रूट है या कोई भी फूड है उसके अंदर 100% न्यूट्रिएंट है, तो आप जब फिर उसको रॉ कंज्यूम करेंगे तो वो आपके एब्जॉर्ब होंगे. फॉर एग्जांपल आपने उसको ब्लांच कर दिया था ना तो मैक्सिमम 20% उसका जाएगा, बाकी जो उसका यू कैन से 80% है वो उसके अंदर प्रिजर्व रहेगा उसी तरह से. अनलेस एंड अनटिल आप कोई ऐसी प्रैक्टिस ना करें जिसकी वजह से वो सारे लीच आउट हो जाएं. तो दिस इज recommended practice you can say when it comes to certain vegetables and certain you can say जो हमारे पास होते हैं रूट वेजिटेबल्स जो होते हैं हमारे पास, रूट फूड जो होते हैं उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं ब्लांच करना. रेस्ट ऑफ द थिंग्स इट रियली नॉट दैट मच हार्मफुल एज कम्पेयर टू अदर्स. हाँ, जो आप उसको 20-25 मिनट या कुकर के अंदर रख के जो लगा देते हैं ना फिर भूल याद ही नहीं रहता कि पीछे कुछ पड़ा हुआ भी था, उससे जो है ना आपके न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हमारी सब्जियों के अंदर होते हैं ना वो तो चले जाते हैं, वो तो आपके वापस ही नहीं आते. बिकॉज उनके लिए बहुत लो मीडियम हीट चाहिए होती है पकाने के लिए. हाई हीट पे वो वाटर सॉल्युबल तो चला जाता है आपका न्यूट्रिएंट. जितने भी फॉर एग्जांपल वाटर सॉल्युबल इफ आई कैन ऑल काइंड ऑफ बी विटामिन्स एंड विटामिन सी, ये दो एक नॉर्मली हमारे पास वाटर सॉल्युबल, रेस्ट ऑफ देम आर फैट सॉल्युबल, तो वो आपका निकल जाता है. Right, it's quite explainable. ये आप सही कह रही हैं. So आप recommend ये करती हैं कि over cooking is not good. एक मेरा question ये है कि अगर हम raw consume करते हैं vegetables को, what is the safest way to do it? Because मैंने देखा है कि बहुत से raw vegetables खाने से भी जो है ना infections, especially gastric infections जो है वो काफी रिलेट करते हैं. आपको पता है कि जो वेजिटेबल्स हमें मिल रहे हैं मार्केट में काफ़ी उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं और यू नो क्या वॉश करना इनफ होता है इन दैट सिचुएशन? व्हाट डू यू रिकमेंड? I'll recommend specifically fruits, और जो हमारे पास आता है you can say बेरीज आ रही होती हैं. बेरीज में स्पेसिफिकली स्ट्रॉबेरी जो आ रही होती है ना वो उस तरह से वॉश नहीं हम लोग करते जिस तरह से करना चाहिए. तो इसका ये है कि यू कैन हैव वाइट विनेगर, और जो पहले हम लोग बना रहे होते थे घर में जो विनेगर होता था जो फ्रूट से बनता था जिसमें हम लोग इन्फ्यूजन कर देते थे, थोड़े एक टाइम के लिए डार्क स्पेस में रख देते थे, उसका विनेगर बन जाता था. तो वो यू कैन यूज दैट, और यू कैन यूज विनेगर. आप एक साफ पानी लें, ठीक है, उसके अंदर कोशिश करें आपका जो पानी जिस पानी से आप धो रहे हैं ना फिल्टर वाटर दो, ठीक है, मतलब वो आप जो आप नॉर्मल पीने के लिए यूज करते हैं वही वाला पानी हो जिससे आप वॉश करें. अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम लोग नॉर्मल टैप वाटर पीते तो नहीं है, लेकिन उससे हम वेजिटेबल्स वॉश कर रहे होते हैं, तो वही जो बैक्टीरिया पानी के अंदर आ रहे हैं ना वही वेजिटेबल्स के ऊपर आएगा, तो धोने का कोई फायदा नहीं होता. तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने एक बाउल लिया, उसके अंदर पानी से भरा, उसके अंदर थोड़ा सा आप लेमन डाल लें. मतलब इफ यू आर आई रिकमेंड विनेगर बिकॉज वो सिंथेटिक होता है थोड़ा सा, और उसमें उसको अच्छे से वॉश करें एंड देन यू ड्राई इन द स्टेनर और वट एवर यू हैव यूटेंसिल्स यू आर यूजिंग, और उसको उसके बाद यू यूज इट वट एवर इट. उसके अंदर बेकिंग सोडा इफ यू वांट टू यूज, बिकॉज बेकिंग सोडा के बहुत ज्यादा फायदे हैं. इफ यू यूज बिकॉज इट इज एंटीसेप्टिक टू, तो आप यूज कर सके. अदरवाइज विनेगर इज मोर देन इनफ. और हल्का सा पानी यू कैन से इट्स ल्यूकवार्म, जिसके अंदर आप आराम से उंगली डाल सकते हैं. हाथ डालेंगे तो आपको गर्म नहीं लगेगा. उस पानी के अंदर आप करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव है. अदरवाइज नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे पानी होता है यू कैन यूज. और एक और चीज यहाँ पे वॉशिंग में मैं ऐड करना चाहूँ, whenever you are washing vegetables and fruits, don't wash it or use the utensils for meat. मीट के लिए वही यूटेंसिल्स ना यूज करें, और एक साथ इनको धोना बहुत गलत प्रैक्टिस है. ईद के दौरान स्पेसिफिकली बड़ी ईद में ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती है
एक जगह पे गोश्त धुल रहा होता है, दूसरी जगह पे सब्जियां या जो भी आपका फ्रूट होता है वो धुल रहा होता है। तो ऐसे नहीं करना, बिकॉज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज या रेशियो ऑफ बैक्टीरियाज इन दोनों के डिफरेंट होते हैं। सो इट्स वेरी अनहेल्दी प्रैक्टिस टू यूज इट। और जो स्पेसिफिकली जो गोश्त वाला आपका बर्तन है उसको अच्छे से वॉश करके दोबारा फिर वापस रख दें, उसको ऐसे सिर्फ हंगाल के ना रखें। यूज प्रॉपर सोप एंड डिटर्जेंट्स व्हाटएवर यू आर यूजिंग। Yeah, क्वेश्चन और that's व्हाट अबाउट टोमेटो जूस? ओमाइजा ने क्वेश्चन किया आपसे। Juice about what? Because I was unable to get the whole question. Tomato juice preparation or tomato juice to be used or not, because I am unable to comprehend the question. Umeza, if you can elaborate a bit on unmute yourself. शी इज टाइपिंग। आई थिंक असरा कुछ कह रही थी, मैंने बीच में बात कर दी। असरा आप बात कर लें कंप्लीट। असरा जी, यस, मैं ये कह रही थी कि यस, आई हैव सीन, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू वॉश विद द विनेगर, क्योंकि ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है अपनी फैमिली में भी कि अगर हम वेजिटेबल्स को रॉ तो ले रहे हैं वो हेल्दी सेंस में, लेकिन अगर वो प्रॉपरली वॉश नहीं है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे कि इनडाइजेशन आप कह लें या इवन लूज मोशंस कह लें, यू नो, दिस काइंड ऑफ इश्यूज, दिस हैपेंस। सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड, बिकॉज ये मुझे वाकई में मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि जो है हाउ टू यूज द रॉ वेजिटेबल्स, व्हाट इज द बेस्ट वे टू ईट रॉ वेजिटेबल्स। सो उसका काफ़ी अच्छा आंसर दे दिया मुझे उम्मे फरवा ने, एंड आई अंडरस्टूड दैट। and it's good to use synthetic vinegar and baking sodas. मुझे baking soda के बारे में एक चीज़ पूछनी है कि is it true कि उसको अगर हम, मैंने ये देखा है कि some people used to drink it just to get their pH level better and to reduce the water retention in the body. Is it a good practice? To be very honest, I haven't read about it, and I have never read or heard about it कि आपको you can say you have to consume baking soda, water or whatever. I have just heard for whitening teeth you can use it along with That is for the beauty things, but actually there was a practice I have seen. There was a person who was actually introducing it on YouTube, on some social media platforms. They were saying that this is the best way to reduce the pH of your not reduce, increase the pH of your blood towards alkaline side, and to reduce acidity and to reduce water retention in the body. But I haven't practiced it, and I'm not sure it's safe or not, because I didn't find any sufficient data on this. That's why I asked you. So, but I will search it and I will share with you all whatever I will come to know about all this, because it's a good platform to share knowledge. And it is my first time, it's the first session that I have taken on TutorBees. I'm really overwhelmed that this is the best way to share the knowledge with the experts, and we can learn and boost, you know. I'll answer this because अभी आपने alkaline उसका basic बात की, तो I was searching for some alkaline foods for my GERD patient. Means acid reflux के patient होते हैं तो हम लोग उनको recommend कर रहे होते हैं, लेकिन I never recommend baking water. And please, one more thing I want to request here, and I request everywhere at every platform, whenever you are following any person or anything on social media, first of all, it's not true. The second thing is, go for in detail analysis of the person. Either that person is professional or not, and don't spread such kind of things, right? Just like maybe there are so many people who just watch that and just blindly follow that person. Don't go this, because most of the time social media पे बहुत fake चीजें होती हैं. For example, we are a dietitians. एक बड़ी common सी practice है, commonly है, और हर दूसरे दिन एक patient आके कह रहा होता है I have to lose weight, इतना kg weight lose करना है इतने months के अंदर. और वो ना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता. वो हमने अपने पूरे 4 साल के इवन ड्यूरिंग एमफिल हमने नहीं पढ़ा कि हाउ इज दैट पॉसिबल. यस, कुछ कंडीशन में पॉसिबल है, एंड वी नो दैट काइंड ऑफ डाइट जो पेशेंट को देनी है, एंड व्हाट आर द कंडीशंस. उसकी या तो बहुत इमीडिएट सर्जरी है, या उसकी कोई बहुत ऐसी लाइफ डेडली सिचुएशन है जिसमें मोस्ट कॉमनली हमारे पास स्टमक सर्जरीज आती हैं.
उसके लिए वेट लूज करना बहुत जरूरी होता है, तो हम अपने पेशेंट को एक यू कैन से कैलोरी डेफिसिट, बहुत ज्यादा डेफिसिट डाइट देते हैं। उसमें मतलब उसके सिर्फ ऑप्टिमम ताकि वो जिंदा रह सके इतने न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे होते हैं। बट डोंट गो फॉर क्रैश डाइट्स और सच काइंड ऑफ थिंग्स। इफ यू आस्क मी फॉर अल्कलाइन, मतलब अगर आपकी बॉडी एसिडिक पीएच बहुत ज्यादा है आपकी बॉडी का, ये ब्लड का, सो आई रिकमेंड अल्कलाइन फूड जस्ट लाइक बनाना हमारे पास है, एप्पल है हमारे पास, वेजिटेबल में स्पिनच आ जाता है, उसके बाद मुख्तलिफ नट्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स हमारे पास है, आलमंड्स है हमारे पास, दी आर ऑल अल्कलाइन फूड्स। यू कैन सर्च योरसेल्फ, राइट, एंड गो फॉर ऑथेंटिक वेबसाइट्स और ऑथेंटिक नॉलेज शेयरिंग या रिसर्च पेपर्स जो होते हैं जिसमें एक रिसर्च कंडक्ट हुई भी है और एट द एंड उन्होंने एनालिसिस निकाला है। सो दीज आर द थिंग्स आई रिकमेंड, गो फॉर दिस, and we have the platform of TutorBee to share such kind of knowledge, and I'll recommend, I do share such things with Bilal, and he can share with you, because these are the alkaline foods that we can use along with grains. There are some grains जैसे quinoa, उसकी pH जो है ना basic होती है, तो you can use, but don't go for baking soda. अच्छा जी, ये तो बहुत ही आज का हमारा I would be really thankful if you share the alkaline foods, which are the natural sources of getting alkaline foods. So that would be great. You can contact me on Right Google. I'll share that. Right, Thank or you. you can ask. I'll share it. आप एक काम करें ना, आप अपने YouTube का जो चैनल का लिंक है वो सेंड करें यहाँ जी, यही मैं कहने वाली थी। I'm not on YouTube. मैं YouTube का नहीं हूँ अभी। Recently I'm not on YouTube. I just started Instagram page, and वो भी page there's a whole story why I started. बस I'm just there, और I'm available on WhatsApp right now. YouTube नहीं है मेरा। जी, उम्मे फरवा, अभी आप जो है, अगर आप इसको एक हमें एक की टर्म दे दें, एक टिप दे दें आज के सेशन का, तो फिर हम इसको अच्छे से ख़त्म करने का हमारा वक्त है, ये हम इसको ख़त्म करते हैं। और जो क्वेश्चंस हैं लोगों के, आप ज़रूर अपना वो जो लिंक है यहाँ पर शेयर करें ताकि लोग आपसे डायरेक्टली बात कर सकें। ठीक है, just stay here. मैं Instagram ओपन करके ना इसमें फरवा की जो प्रोफाइल है उसका मैं यहाँ लिंक शेयर कर दूं ताकि लोग इजीली यहाँ से क्लिक करके बात कर सकें। बिल्कुल। One more, as we are at the end, thank you so much for TutorBee. It has been always a family, or my brother and so many other fellows joined TutorBee too as a tutors. So the session, last thing जो मैं कहूँगी, whatever disease, deficiency, whatever it is, be connected to the nature. उसमें सबसे important चीज, this is a pro tip I recommend to every single patient I have or every single fellow in my circle. सबसे अच्छी ग़िज़ा खाएं, and these are the things you can say. I was hearing a podcast, and she was 102 or 109 years old Chinese lady, and someone asked her कि वो 3 tips बताएं for a healthier life, why she's still so young and healthy. So उन्होंने बताया कि the first thing is your food. Let food be your medicine. You don't really need medicine, to be very honest. If you are having a healthy balanced meal, आपके अगर मील से सारा कुछ पूरा हो रहा है ना, आपको किसी दूसरी चीज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है. एंड वी नीड टू कंसीडर दिस बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग एट वेरी मैसिव लेवल. सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, एंड आई विल रिकमेंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज व्हाट आई हैव एट माय होम इज किचन गार्डन. किचन छोटी सी जो आपकी हर्ब्स है ना, आप घर में उगाएं, आपको बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं. फॉर एग्जांपल लेमन होता है हमारे पास, धनिया है आपके पास, अदरक है, लहसुन है आपके पास, आप घर में उगा सकते हैं. और there are so many videos and so many things available on the internet that will provide you अच्छा किस तरह से उगाना चाहिए, किस तरह से उसकी केयर करनी चाहिए. The third thing is, जितनी आपकी एज है उतने टाइम्स मीन्स उतना ड्यूरेशन आपने ऑन अ डेली बेसिस जो है ना वॉक करनी है. राइट? मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर 25 years तो गो फॉर 25 minutes वॉक. एंड वॉक थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक मीन्स जिसमें आप पहले 10 मिनट अगर चल रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा आपका सांस फूलने लगे, जिसको हम नॉर्मली ब्रिस्क वॉक कहते हैं. तो गो फॉर इट. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लें, बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते.
we don't recommend going to the gym unless and until there is required. There are so many exercises you can do at home, right? So go for the simpler things. Don't go for the complex things into the market and into the. And the third thing is, मार्केट में से ग्रोसरी में जो चीज आप ले रहे हैं ना, उसका सिर्फ लेबल पढ़ लें. उसमें आपको पता चल जाएगा इसके अंदर फैट कितना है, स्पेसिफिकली ट्रांस फैट. हमेशा 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 कोई पैकेज प्रोडक्ट आप यूज करें स्पेसिफिकली अपने बच्चों के लिए और टीनेजर जो लड़कियां हैं, वो ट्रांस फैट अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है तो डोंट गो बाय दैट प्रोडक्ट. एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सैचुरेटेड फैट. सैचुरेटेड फैट शुड नॉट बी मोर देन 10% इन एनी प्रोडक्ट. अगर 10% से ज्यादा है, स्पेसिफिकली वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो डोंट बाय सच प्रोडक्ट्स जिसके अंदर फैट बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर सोडियम बहुत ज्यादा है. तो डोंट जो है ना बाय सच काइंड ऑफ थिंग्स. बी नेचुरल, ईट नेचुरल. So this is the end of the session. Thank you so much for having me here, and I hope it was quite helpful. I tried to convey as much as I can, and thanks to Tutor B for this. Thank you very much, Umme Farwa. Very insightful, very knowledgeable session. और हमें बहुत अच्छा लगा. लोगों ने यहाँ से no doubt बहुत कुछ सीखा. और इस सेशन को एंड अप करने से पहले मैं एक छोटी सी बात सबको बताना चाहती हूँ. किसी ने मुझसे पूछा कि ट्यूटर बीज ग्रुप का जो है ना काम क्या है, पर्पस क्या है. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा ट्यूटर बीज का ग्रुप है, या हमने एक कम्युनिटी ऑनलाइन बनाई है, इसमें हम नॉलेज शेयर करते हैं. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम नॉलेज शेयर करें और उसको कंट्रीब्यूट करें. उसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है. उसमें लोग आते हैं और लोग बात करते हैं और हम इसको प्रोडक्टिव रखते हैं. ये एक छोटा सा फोरम है जो हमने क्रिएट किया है. ठीक है, अदर देन ट्यूशंस और वो जो तमाम चीजें हैं, वो ट्यूटर बीज का अलहदा एक फोरम है. उसके ऊपर डायरेक्टली आप टीम के साथ बात कर सकते हैं. यहाँ पर हम सिर्फ नॉलेज शेयर करते हैं. जिसने शेयर करना है मोस्ट वेलकम, आए और शेयर करें, जैसे कि उम्मे फरवा ने शेयर किया. आज के सेशन से जो अगर मैं समराइज करूं तो हम व्हाट वी आर ईटिंग एंड व्हाई वी आर ईटिंग एंड हाउ वी आर ईटिंग, दीज ऑल थिंग्स आर एड्रेस्ड थ्रू दिस सेशन. और उम्मे फरवा की बहुत अच्छी छोटी छोटी टिप्स हैं, जैसे किचन गार्डनिंग करें, वॉक करें और रीड द लेबल जो आप खरीदने जा रहे हैं, और प्लीज सिंपल डाइट लें, ईट सिंपल और सिंपल लिविंग की तरफ जाएं. ये आपको बहुत अच्छा रखेंगे. थैंक यू वेरी मच. हम नेक्स्ट थर्सडे फिर आपसे मिलेंगे एक नॉलेजेबल प्रेजेंटर के साथ, और तब तक के लिए इजाजत मुझे और बिलाल को. अल्लाह हाफिज. बिलाल आ जाए. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Miss Asiya, for this wonderful end, and Miss Umme Farwa. कल हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, इसको एडिट करेंगे और इंशाल्लाह इसको पोस्ट भी करेंगे. मिस उम्मे फरवा को भी आई विल शेयर इट विद यू एज वेल. और आप सब उन लोगों को ये शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इट्स अ वेरी सीरियस इशू आयरन डेफिशिएंसी का, बिकॉज ऑफ आवर प्रोसेस्ड फूड और वगैरह. क्योंकि अभी इन्होंने मिस उम्मे फरवा ने डिस्कस किया अबाउट एवरीडे. तो वो चाहे ऑफिस में 2 टाइम यही पीते थे, तो आई वाज़न्ट फीलिंग गुड पीते हुए इसको. मुझे हमेशा इस पे डाउट होता था कि समथिंग इज रॉन्ग विद इट. इट्स गुड, इट्स टेस्टी, बट समथिंग इज वेरी रॉन्ग विद इट. तो मैंने ग्रीन टी शुरू कर दी ऑफिस में. तो इट्स बिन लाइक 1.5 months के मैंने वो एवरीडे की जो चाय है वो मैंने मतलब छोड़ दी है. लेकिन बिलाल, आपको पता है आज के सेशन में उम्मे फरवा ने हमें एक बात बहुत अच्छे से क्लैरिफाई की. जी जी जी. ये है ग्रीन टी, ये जो टी है, एनी काइंड ऑफ टी और कॉफी, इसमें जो भी कुछ मौजूद है ये आपकी डाइट के साथ इंटरफेयर करता है. और एनीमिक जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग शायद जेनेटिकली होते हैं या नहीं होते, लेकिन एनीमिक होने की बहुत सारी प्रैक्टिसेस हम खुद करते हैं, है ना उम्मे फरवा? Yes, अच्छा, I want to mention one thing here. हमारे जो फूड कॉम्बिनेशन होते हैं ना, मतलब ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया. अब वो जो फूड कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, हम एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी. ये जो सारी चीजें मैंने शेयर की, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस.
from my whole journey, specifically जो hostel की 4 साल की journey थी mostly. So whenever I am prescribing someone any diet plan ना, तो I consider this in कि भाई अब ये बंदा hostel में है ना, तो इस बंदे के लिए बहुत मुश्किल होगा ये चीज मैनेज करना, because I have been through this. And Bilal, you are right, it's not in the office, it's also in the hostels, because it's very convenient. You just boil the water and add the tea bag, and tea bag, most important thing, मैंने एक research पढ़ी थी उस वक्त, I try to consume afterwards थोड़ा. अब मैं क्या करती थी कि I just have the kahwa made by myself, and I just add the again the tea whitener every day on it. So उसमें ये होता था कि चलिए आपका जो टी बैग होता है ना, दैट्स कार्सिनोजेनिक, उसके अंदर कैंसर कॉजिंग है, राइट? यू कैन गो टू द गूगल स्कॉलर एंड सर्च कि टी बैग कार्सिनोजेनिक है. देयर आर सो मेनी रिसर्च. व्हेन यू आर इनटू द रिसर्च ना, सो यू केम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स. और एवरीडे के साथ साथ एक था हमारे पास, यू कैन से तरंग, दैट वाज अ टी व्हाइटनर. और लोग उनको अपने छोटे बच्चों को, जो 6 महीने का बच्चा उसको दे रहे होते थे, ये समझ के कि वो दूध है. एंड मुझे नहीं समझ आता कि वो बच्चा किस तरह से उसकी ग्रोथ होगी, किस तरह से उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे. यू आर गिविंग एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फीड, मतलब 6 महीने के बच्चे के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड इंट्रोड्यूस कराते हैं, एंड यू गिविंग दैट किड द टी व्हाइटनर. और इसी तरह जूस है. आई जस्ट हैव टू, मुझे ना कभी कभी आदत होती है पब्लिक ट्रैवल करने की. सो आई वाज ऑन ऑरेंज ट्रेन, और यू कैन से 8 months बेबी, एंड द मदर वाज फीडिंग हिम विद दैट नेस्ट फ्रूटा का जो जूस नहीं होता उसके. और उसको अगर आप लेबल पढ़े ना, तो वो सिर्फ फ्रूट जूस है, वो फ्रूट पल्प नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ शुगर है. आपको सिर्फ शुगर मिलेगी, वो भी सिंथेटिक जो है, एंड इट इज कार्सिनो, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है, जो जितनी भी आर्टिफिशियल है. सो डोंट कंज्यूम दिस. ग्रीन टी अच्छी है, आप पिए. इट हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर मेटाबॉलिज्म. वेट लॉस में उसका कोई जो है ना अमल दखल नहीं है. मेटाबॉलिज्म तेज कर सकता है. लेमन ग्रास टी बहुत अच्छी है. इट हेल्प्स यू मेंटेन योर बीपी एंड ऑल दोस थिंग्स. यू कैन इंक्लूड दैट, बट डोंट ओवरकुक मच. उसका पानी गर्म करके रखें, उसके अंदर वट एवर हर्ब्स यू वांट टू उसका डाल दे थोड़ी देर के लिए, 3 से 5 मिनट. कलर आप चेंज हो जाएगा, उसमें इन्फ्यूजन हो जाएगी, यू कैन कंज्यूम इट. वो जो उबालने पे रख देते थे ना, वो कुछ हर्ब्स के लिए, कुछ के लिए नहीं है. सो आई होप दिस हेल्प्स. सी यू सून, एंड डोंट कंज्यूम टी राइट आफ्टर योर मील्स. ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, पूरा पाकिस्तान कर रहा है, बल्कि पूरे एशिया में बहुत कॉमन है. आई एम द वन, समटाइम्स आई राइट नाउ आई डू दैट टू, बट माइंडफुल ईटिंग जब आप कर रहे होते हैं ना, अच्छा आपने कर ली, don't be in the guilt. Next time don't do that. So I hope this helps. See you soon in the next sometime another time. And thank you Bilal and Atia for having me here, and all those participants जिन्होंने participate किया either in the comment section or while unmuting themselves. Thank you so much everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for coming, everyone, for joining this session. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.